Welcome everyone. We will begin with our healing circle talks. Please allow me to read the guidelines. हम लोग इस सेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे, प्राइमरली हिंदी में रखेंगे. Healing circles are safe havens. They are built on a foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in this circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us and rely on the power of silence to access it. Thank you so much for joining us. Today we have a very inspiring person with us, Rajiv Khandelwal, who was caregiver to his mother and renowned actor known for winning audience in Kahin To Hoga and the critically acclaimed film Amir. Rajiv's journey in cancer care has been deeply personal and challenging, having been a caregiver to his mother, Vijay Lakshmi Khandelwal ji, during her courageous journey with cancer. Unfortunately, she is not here with us in the physical form. We lost her in May 2018 after 1.5-year long journey with cancer. Raji believes that watching someone you love deal with cancer can be even more challenging than the disease itself. His experience highlights the silent struggle and strength of caregivers everywhere. Raji will share heartfelt moments from his caregiving experience, reflecting on the power of staying positive and the inner strength needed to support a loved one. He believes that the battle against cancer is not just about medical treatment, but also about the hope and the willpower and the courage from within. You can overcome any challenge with a positive spirit and the will to keep fighting, as he says. So let's join everybody to hear from Raju about his caregiving experience and learning and insights that I'm sure will be helpful for all of us. So Raju, over to you. Thank you so much कि आज आपने हमें इस सर्कल में ज्वाइन किया. And मैंने काफ़ी बार आपकी मदर और आपकी जर्नी के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़े हैं. एंड एक जो आपकी कोट है जो आपने ट्विटर पे डाली थी व्हेन यू लॉस्ट योर मदर की आज के बाद से मैं किसी को शायद कोई नहीं है मम्मी बुलाने के लिए. एंड दैट वाज वेरी टचिंग. So, in fact, I lost my husband Nitish in March 2018 और उसी वक्त आप भी अपनी केयर गिविंग जर्नी से निकल रहे थे. So, आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे उसके ऊपर. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जो हम लोग सेशन के बीच में ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. Yeah, Dimple, I remember जब आप when you had your what do I say, your personal loss, उसी टाइम पे मेरा भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था. एंड दे आर इररिप्लेसेबल. आपका जो लॉस है और जो मेरा लॉस था वो इररिप्लेसेबल है. एंड यस, मैंने कहा था कि हमें जिंदगी में एहसास नहीं होता है कभी कभी कुछ चीज़ों का. हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मदर हो, फादर हो. वी वी ऑलवेज थिंक कि ये लोग हमेशा रहने वाले हैं. और ये भी हालांकि जानते हैं कि डेथ इज इमिनेंट. लोग आए हैं तो जाएंगे भी. बट हम कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेट्स से आवर पेरेंट्स. तो जब मम्मी के साथ में हुआ तो मैंने ये कहा था कि एक्चुअली एकदम से आपको रियलाइज होता है कि यार अभी वो फोन कॉल कहाँ गया, मम्मी को बोलने वाला, मम्मी पे चिल्लाने वाला फोन कॉल, मम्मी पे फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला फोन कॉल, मम्मी को याद करने वाला फोन कॉल, मम्मी को प्यार करने वाला फोन कॉल, मम्मी को मिस करने वाला फोन कॉल. इट जस्ट गोज अवे इन अ डे. बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था ऐसा मुझे लग रहा था कि दैट मे बी देयर इज होप, बिकॉज आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने फाइट किया है कैंसर से, एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स, लॉट ऑफ केयर गिवर्स. मैं बहुत से लोगों से मिला था और मुझे ऐसा लगा था, या मैंने अपने आप को ये कन्विंस किया था दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. डिटेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ इट. ऐसा मैंने अपने आप को कहा था कि तब मालूम पड़ा ना अभी होगा क्या, ये तो किसी को नहीं मालूम है. सो एटलीस्ट लेट्स डील विद इट इन एज I mean, in the best positive way, in the best possible way, and maybe हम लोग इसको डील कर सकते हैं and आगे बढ़ सकते हैं. मैं सुप्रीमली कॉन्फिडेंट था. मुझे ऐसा लगा था कि मैं ये वक्त है मेरा हीरो बनने का, अपनी माँ के लिए हीरो बनने का. फिल्मों में, टीवी सीरीज में आप हीरो बन जाते हो, बट दिस इज बीइंग अ रियल हीरो. सो दैट इज व्हाट आई वाज अज्यूमिंग इन माय हेड. आई लेफ्ट एवरीथिंग. मैंने काम छोड़ दिया था कुछ महीनों के लिए, इनफैक्ट पूरे 1 साल के लिए. आई वाज विद माय मदर. मैंने सब कुछ ट्राई किया, बट एक ही दिक्कत थी मेरी, और वो दिक्कत ये थी कि मम्मी मेरी जो थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं. जितनी मेहनत मैं कर रहा था, हम सब कर रहे थे, मैं अकेला नहीं था इस जर्नी में. मेरे भाई भी हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं, और मेरी वाइफ भी है, और भी बहुत से लोग थे. देयर वर सम डॉक्टर्स थे, देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल हु वर डूइंग इट फॉर हर. बट मैं जब पीछे मुड़ के भी देखता हूँ, मैं जानता हूँ वो उनकी तरफ से नहीं था. कहीं ना कहीं उनके मन में वो डर बैठने लगा. वो डर बैठने लगा तो
वो चीजों को नेगेटिवली लेने लगी, उन्हें लगा कि अब कभी भी कुछ हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि उनको मैं पॉजिटिव जोन में रखूँ। मैं बॉम्बे से गोवा ले गया, उनको मैंने सोचा कि उनको मेडिटेशन कराऊंगा, उनको मैं बहुत सारी चीजें करूंगा सो दैट उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, मे बी मेंटली वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी। बट आई थिंक हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एज ह्यूमन बींग्स। लाइक माई मम इज अ वेरी नॉर्मल, वॉज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग, और जितने भी लोग कैंसर से गुजरते हैं, आई थिंक दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, एंड अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो कि वो डर लगता है। लेकिन वो एक, जब डर भय में, तब वो डर क्या, वो कंसर्न जो है वो भय में बदल जाता है, तब 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 कोई कुछ नहीं कर सकता। सो मम्मी का भी ये हालत था, दैट शी एक्चुअली काइंड ऑफ गिव अप, शी डिड नॉट बिलीव कि वो ठीक होंगी। और उस दौरान कभी कभी क्या होता है कि दैट यू हेयर नेगेटिव स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरी मौसी जो है, उनकी छोटी बहन, शी वाज आल्सो डिटेक्टेड विद कैंसर, सेम ओवेरियन कैंसर उनको भी हुआ था। जब उनको भी डिटेक्ट हुआ, विद इन, अनफॉर्चुनेटली, सैडली, 6 months में, माई मौसी कमिटेड सुसाइड, शी डाइड। एंड मेरी मम्मी जो कि फाइट कर ही नहीं थी, मे बी वो 50% कहीं पे थी, सडनली इट वाज अ बिग जोल्ट फॉर, और घबरा गई। और जब वो और घबरा गई तो हम कुछ नहीं कर पाए। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक, मुझे पता था कि अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। वो कीमो ने इनको थोड़ा बहुत इफेक्ट किया, बट देन she didn't believe that she'll get fine. And I, my request to all the patients जो जिनको कैंसर होता है, because मैं उनसे भी मिला हूँ जो लड़ चुके हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ जो 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 लड़के आज भी जी रहे हैं और बहुत पॉजिटिवली जी रहे हैं, जो मुझसे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। One thing that has been common in all the survivors has been that they were very positive, they were fighters, they believed it is their life, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करेंगे, डॉक्टर्स और दवाइयां कंट्रोल नहीं करेंगी, वो उनका एक अलग चरित्र। So I think you will have to change your character. जो patients होते हैं, they will have to change their character once you face something like cancer. And whatever I have understood of cancer after so many years of interaction, in fact, you know it that कि जब मम्मी के साथ में ऐसा हो रहा था, तो we started this, not me, I kind of supported this organization called सशक्त, और जो सशक्त ओवेरियन कैंसर के लिए शुरू की थी। एंड कंप्लीटली उनकी जो द वन हु रन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेघा, सो शी एंड आई वी केम टुगेदर ओनली टू एजुकेट पीपल, टू टेल पीपल कि यार देखो, हम दोनों ने ऐसा, हमने देखा है, हमने झेला है, तो आप ऐसा ना करें। सो माई क्विकली आई जस्ट से दैट कि माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सर्वाइवर्स इज, जितने भी लोग गुजर रहे हैं इस बीमारी से, या जो इसका सामना कर रहे हैं, कि ये, इट इज नॉट द एंड। ये मैं कितने लोग कह चुके हैं, मैं तो खुद बहुत करीब से देख चुका हूँ। इट इज नॉट द एंड। आप एक बार जाके लड़ें तो सही, आप एक बार कोशिश तो करें, एक बार आप खुद में विश्वास तो करें, उसके बाद तो जाना सभी को है। लेकिन मजा तो है कि आप जब जाएं तो आप मुस्कुराते हुए जाएं, लड़ते लड़ते जाएं। ऐसे हथियार डाल के या गिव अप करके जाने में तो कोई मजा नहीं है। यू हैव टू बी एटलीस्ट अ हीरो इन योर ओन आईज। सो खुद का हीरो बने, लड़ें, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे लोग लड़के आगे बढ़े। थैंक यू राजीव, आपने इतना अच्छे से अपनी जर्नी को शेयर किया, क्योंकि और आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि जाना तो सबको है, और हमें हमेशा शायद आउटकम नहीं पता हो कैंसर जर्नी में कि हमारे साथ लास्ट में क्या होगा, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, सफरिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिविटी, विल पावर और होपफुल होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें देखना है। सो थैंक यू सो मच। एंड आप क्योंकि इस जर्नी से बहुत ही क्लोजली निकले हैं, अपनी मम्मी के लिए केयर गिविंग करना, मतलब इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। और तभी आप अपने दिल से इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, ठीक हो सकते हैं, इसको करेजियसली आगे बढ़ना है। अब हो गया एक बार, लेकिन अब हमारे हाथ में क्या, हमें वो चीज़ करनी है। राजीव, आपने जो बताया कि आपकी मम्मी का वो ऐसा सोच रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और ऐसा काफ़ी सारे केयरगिवर सोचते हैं। कई बार सॉरी, कई काफ़ी सारे पेशेंट सोचते हैं। कई बार वो अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर पाएँगे ओपनली कि मुझे नहीं लगता है अभी कुछ होगा, या कई बार वो अपने मन में रखेंगे और अंदर ही इनर स्ट्रगल चलता रहेगा, शेयर नहीं करेंगे अपने लव्ड वन के साथ में। जैसे कि नितेश ने कभी मेरे साथ में शेयर नहीं किया कि उनको कितना डर लग रहा है। क्या उनको खुद को लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो होपफुल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो मेरे साथ शेयर करेंगे तो उन्हें लगेगा कि नितेश ने गिव अप कर लिया तो डिंपल भी गिव अप कर लेगी। तो आपके केस में आपको पता था कि आपकी मम्मी कहीं न कहीं होप खो रही हैं। एज़ अ केयरगिवर आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग रहा? या क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि पेशेंट्स को कैसे हिम्मत दें, उन्हें कैसे विल पावर दें, उन्हें कैसे पॉज़िटिव रखें? क्योंकि अगर वो उनके अंदर विल पावर है तो आधी चीज़ वैसे ही सॉल्व हो जाती है।
आपने ये बहुत बड़ा चीज है जो कि आपने अभी शेयर किया है, आपने उसे कैसे ओवरकम किया या क्या क्या चीजें ट्राई किए करने के लिए? कि सबसे पहले तो मैंने मम्मी को ये बोला था, मुझे याद है कि मम्मी एक्सेप्ट करो, आपके पास जब फोन आते हैं आप लोगों से बात करना आपने बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी दुनिया में, मेरी किसी जो भी फोन है आप बोलो कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बिजी हूँ। और मैं समझ सकता था उनका वो इमोशन। तो मैंने मम्मी को स्टार्टिंग से पहले दिन से कि मम्मी को एक समझाना शुरू किया कि मम्मी आप फोन उठाओ और आप बोलो कि मुझे कैंसर है स्टेज 4। मैंने कहा जितना आप बोलोगे उतना आपको ये एक्सेप्ट करोगे प्रैक्टिकली, आप भागोगे नहीं। हम इस चीज से पहले दिन से ही भागना शुरू कर देते हैं। मैंने जो देखा अम्मी को कि वो पहले दिन से किसी से बात नहीं करनी, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। और उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया। सीसर जो समझ में आया वो ये कि कैंसर को इतना भयानक बना रखा है हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारी दुनिया में इतना भयानक उसको एक रूप दे रखा है कि आदमी को कैंसर बोलते ही लगता है कि उफ, जिंदगी खत्म। जो कि सच नहीं है। अब वो सच सामने क्यों नहीं आता मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ वो रिपोर्ट करना कि ये इस आदमी इस कैंसर से मर गया, अगर किसी को समझाने की कोशिश करे, जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं उनका नंबर कहीं ज्यादा है जितने लोग कैंसर से मरते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। बट कैंसर जैसी चीज जिसके बारे में बात करो और एकदम से आप एक्सेप्टेंस ही आपका खत्म हो जाता है। तो मैंने मम्मी को स्टार्टिंग से बोला कि मम्मी प्लीज आप एक बार ना फोन उठा के बोलो कि मुझे स्टेज 4 कैंसर है, जो कि नहीं बोल पा रही थी। नहीं बेटा, मैं कोई इनसे बात करे, तो उनको बहुत जबरदस्ती मैंने बात करना शुरू किया। मेरा पर्पस सिर्फ एक था कि मम्मी जब एक्सेप्ट करेंगी तो वहां से पहला स्टेप होगा शुरू की एक्सेप्टेंस है कि हाँ मुझे कैंसर है और अब मैं लड़ रही हूँ। फिर मैं मम्मी के साथ में बैठता था और मुझे याद है कि मम्मी को मैं ऐसी मैं उनको योगा कराता था। ट्रीटमेंट चल रहे थे वो चल ही रहे थे, उनको योगा के साथ बैठता था मम्मी के साथ में, मेडिटेशन मम्मी के साथ में करता था, प्राणायाम करवाता था उनको। पर मुझे पता था कि मैं जब देखता था बीच में मम्मी का प्राणायाम में फोकस नहीं होता था, मम्मी का मेडिटेशन में फोकस नहीं होता था, वो सिर्फ करने के लिए कि राजीव बोल रहा मैं कर लेती हूँ, वो भी अच्छा हो गया, 30 सेकंड हो गया ना। सो शी वॉजन। और मेरा ये था कि मम एक बार आप ना, आपको पीस चाहिए, आपके दिमाग में पीस चाहिए, वहां से सब कुछ शुरू होगा। तो वो सब जब मैं देखा मैंने कि नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ये बोलती थी कि राजीव करेगा, मुझे मालूम है राजीव जो, और राजीव जो बोलता था वो खाती थी। बट शी नेवर बिलीव्ड कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे ठीक, वो मेरे लिए ठीक होगा। कहीं ना कहीं मैं उनको बोलता था कि मम्मी आप, और मैंने उनको इन्वॉल्व करना शुरू किया। मैंने कहा मम्मी आप मेरा एक, मेरे लिए एक डायरी लिखो, आई वॉन्ट टू रीड इस जर्नी में आपके साथ में क्या हो रहा है, आपके ख्याल क्या है, एटलीस्ट जो आप बोल रही हो वो कम से कम लिखो। और मेरी कोशिश ये थी कि शायद जब वो लिखेंगी तो उनके अंदर से वो बाहर निकल आएगा। जैसा कि आपने कहा कि योर हस्बैंड वाज नॉट स्पीकिंग, जो कि वेरी अंडरस्टैंडेबल होता है। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई आदमी ये समझ रहा है अपने दिमाग में कि दिस इज माई एंड, तो मैं सामने वाले को क्यों डिस्कम्फर्ट करूं, मैं सॉरी उसको मैं क्यों इतनी टेंशन में डालूं कि उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाए। तो ये एटीट्यूड समझ में आता है कि आप दूसरे वाले को इतनी इतनी विपदा में नहीं डालना चाहते हैं, इतनी उसको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप एक शायद शेयर नहीं करते हैं, आप एक कुकून में चले जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं, वो पेशेंट्स ये नहीं समझते हैं कि आप जितना कुकून में जाएंगे आप उतने अकेले होते जाएंगे, और उतनी वो जो बीमारी है वो आप पे हावी होती जाएगी। बिकॉज यू नीड टू बी फ्री, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली फ्री टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। बड़े अजीब है, मतलब दिस इज इट्स अ बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है ये, जहां पर मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द, मैं समझ सकता हूँ उनका वो खौफ, उनका वो डर। बट सच तो ये है कि उसी सब को आपको बाहर निकालना है। Yeah. जिसे आपको बाहर निकालना है हम उसी को अंदर घुसते जाते हैं, और वही हमारी हमारी अंत में अक्सर जो मैंने जो सुना लोगों से कि लोग दिस उनका जो ये खौफ है, उनका जो भय है, वो ज्यादा जल्दी जान ले लेता है। बिकॉज जब भी सक्सेस स्टोरी सुनी है तो उन लोगों की सुनी है मैंने जो भले ही 1 साल भी ज्यादा रहे हों, एज कम्पेयर टू जो डायग्नोसिस होता है कि यार आपका प्रोग्नोसिस, सॉरी, कि आपका 1.5 साल तक आपकी लाइफ है। जो लोग कम से कम 2.5 या 3 साल रहे हैं, मैंने उन लेडीज से सिर्फ इतना ही सुना है कि राजीव हट, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कैंसर मुझे क्या मारे, कैंसर मुझे नहीं मार सकता, मैं देख तू देख अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे, मैं जा रही हूँ इस वाले मंदिर में, मैं जा रही हूँ इस आश्रम में, अभी मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे नहीं करना कुछ। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ की एक फ्रेंड है जो कि आई थिंक वो टाटा मेमोरियल में पिछले 6 साल से जा रही है। शी इज गॉट मल्टीपल ऑर्गन कैंसर, मतलब उनका जो कैंसर है मल्टीपल ऑर्गन में जा चुका है। हर बार मैं ये सुनता हूँ कि वो 6 महीने उनको दिए डॉक्टर ने, और करीबन 3-4 साल हो गए। उनकी ब्यूटी ये है कि वो अपने, उन्होंने एक फार्म शुरू किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। गोवा के 2 या 3 घंटे पहले एक जगह है कुड़ाल करके, कनकौली करके, सॉरी, वहां पे उन्होंने एक फार्म शुरू किया जहाँ पे वो अपने जैक फ्रूट उगाती हैं, जैक फ्रूट के जैम्स बनाती हैं, जैक फ्रूट के अचार बनाती हैं। वो उनके पास जाओ तो वो मुझे अपने दिखाती हैं, चल मैं दिखाती हूँ तेरे को, उन्हें मालूम है राजीव को बहुत शौक है।
मुझे दिखाती है तो मुझे एक बार भी नहीं लगता कि उन्होंने कैंसर के बारे में कोई बात भी की। और मुझे लगता है कि मैं बात करूं क्योंकि मैं अपनी मम्मी के एक्सपीरियंस से कुछ बताऊं, पर मुझे लगता है मैं क्या बताऊं इनसे, इनसे तो मुझे सीखने को मिल रहा है। चेहरे से मुस्कुराहट जाती नहीं है उनकी। वो उनको जब आप देखो तो लगता है कि या एक दिन न्यूज आएगी कि शायद 6 महीने के बाद में वो नहीं रही। लेकिन एक तो ये कि मेरी जिंदगी में हमेशा वो उनकी एक छवि रह जाएगी। दूसरी चीज ये कि पिछले 3 साल से वो 6 6 महीने का जो उनको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, उससे अगर वो बीट कर रही हैं तो मुझे लगता है वो उनका एटीट्यूड है, वो दवाइयां नहीं है। क्योंकि वो कनकौली से वो बॉम्बे आती हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए ट्रेन से। जब उनको कीमो होती है तो वो आती हैं, टाटा मेमोरियल में जाती हैं, वापस जाती हैं, और कुछ उनसे फोन पर बात करो, अरे राजीव आज तो ये हो गया तुझे, तू कब नहीं, बहुत टाइम हो गया तू आया नहीं यहाँ पे, मैं तेरे लिए मुल्तानी मिट्टी का वो फेस पैक बना कर रखा हुआ है, नो ऑल दोस थिंग्स। कैन यू इमेजिन जब आप गुजर रही हैं इससे, आप बॉम्बे में भी नहीं है। जनरली लोगों को लगता है हॉस्पिटल के मैं करीब रहूं, वो कनकौली में एक ऐसी जगह पे है जहां से उनको अगर ट्रीटमेंट लेना हो तो उन्हें बॉम्बे आना पड़ता है। 7 घंटे की जर्नी है। बट व्हाट अ बिलीफ सिस्टम। तो ऐसे लोगों से जब मिलते हैं तो समझ में आता है कि ये, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके एटीट्यूड का है। तो मम्मी के साथ में मुझे दिक्कत थी, और हर केयर गिवर, बाय द वे केयर गिवर्स को बता दूं मैं कि ऑफकोर्स ये आपके सामने चैलेंजेस होंगे। ये चैलेंजेस आपको समझने हैं। इसमें आप नहीं अपना एटीट्यूड नेगेटिव कर सकते, आप गिव अप नहीं कर सकते, आप गुस्सा भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप नहीं गुजर रहे हो उस चीज से। सो द मोर यू आर एक्चुअली कंपैशनेट, जितना आप उनको समझेंगे, जितनी आप उनको स्ट्रेंथ देंगे, जितना आप उनको एक हौसला अफजाई करेंगे, जितना आप उनको नॉर्मल महसूस कराएंगे, उतना ही शायद पेशेंट भी नॉर्मल महसूस करता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने डायरी लिखी, और उन्होंने डायरी लिखी, उसके पन्ने जब मैंने पढ़े उसमें बहुत कुछ चीजें समझ में आई। वो डर भी समझ में आया। फिर कुछ चीजें ऑफकोर्स उनकी लाइफ से जुड़ी हुई थी, तो बहुत कुछ चीजें समझ में आई एनीवे। बट द फैक्ट इज कि जब मैंने बोला तो उन्होंने वो लिखी चीजें, और वो लिखी जब 1.5 साल के बाद पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा मम्मी सब समझ रही थी। एटलीस्ट एक मुझे अपना दोस्त समझा उन्होंने उस दौरान। सो वो, अब उसके बाद क्यों उनकी हिम्मत नहीं थी, क्यों उन्होंने, या क्यों उन्होंने वो करेज नहीं दिखाया, वो उनके कुछ पर्सनल रीजन भी थे। बट द फैक्ट इज एज अ केयर गिवर, मैं एटलीस्ट ये सोचता हूँ कि हाँ मैंने जो सोचा वो मैं अचीव कर पाया था काफी हद तक। सो हर केयर गिवर को ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई इसमें कोई बहुत ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को इतना पॉजिटिव महसूस कराएं, इतना नॉर्मल महसूस कराएं। द वर्ड इज एक्चुअली नॉर्मल। ना आप किसी को खास महसूस कराएं कि यार आपको ट्रीटमेंट, आप कैंसर से गुजर रहे हैं तो यार आप बहुत स्पेशल हैं, अरे अरे इनको अटेंशन दो ज्यादा। बिल्कुल नहीं। आप उनको बताएं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जैसे किसी को पोलियो होता है, या किसी को और भी जो बीमारियां होती हैं, किसी को टीबी होता है, किसी को ब्रोंकाइटिस होता है, किसी को कुछ और होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, बीमारियां हैं ये। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग आप गुजर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट है, एंड नथिंग टू बी वरिड अबाउट, नथिंग टू बी स्पेशल अबाउट। डू नॉट मेक देम फील कि यार अरे तुम जानते हो डिम्पल, लोगों का एटीट्यूड होता है, ओह कैंसर है। दैट्स द रिएक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल गिव। आप किसी को बोलो कि मुझे कोविड है, और तुझे भी कोविड हो गया, दैट्स द रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू कोविड, बिकॉज समवेयर आप वो खौफ को, इवन इफ यू थिंक, आई एम जस्ट सेइंग एज अ पर्सन कि यार ये दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, डू नॉट स्प्रेड इट टू द अदर वन। डील विद इट नॉर्मली। ओ कैंसर, जैसे मैं डील करता था कि मम्मी को मेरी स्टेज 4 कैंसर है, शी जस्ट गोइंग थ्रू दिस स्टेज 4। मैं ये नहीं बोल रहा कि शी इज सफरिंग, मैं तो बोल रहा शी इज गोइंग थ्रू स्टेज 4 कैंसर एज ऑफ नाउ। मतलब आज की तारीख में है, कल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। So I think that is very important for caregivers. थैंक यू राजीव, आपने बहुत ही सही चीज शेयर की कि जो प्रैक्टिकली हम जिन चीज़ों से निकलते हैं एज ए पेशेंट, एज ए केयर गिवर, जिन जिन चीज़ों से हम प्रैक्टिकली निकलते हैं, आपने उन सब के बारे में बताया। एंड जो आपने एक चीज़ बताई कि इनफैक्ट आई रेजोनेट इट विथ सो वेल, एंड मैंने थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स को इंटरव्यू किया है, और सब में एक जो कॉमन चीज़ थी वो यही थी कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, आज अच्छे से जीना है। और उनकी लाइफ का पर्पस था कि मुझे अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए करना है। एक फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी, जैसे आपने जिन आंटी के बारे में बताया कि उनका वो शौक है, उन्हें वो अच्छा लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। मैं हमेशा एक यही चीज सबको बोलती हूँ कि एक एक आपके कॉज से जो अटैच चीज है वो क्या है, और आप उसको अपना फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ एंड देन फॉलोइंग दैट पाथ। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग importance of willpower, positivity, living every day and not thinking about that I'm dying every day, rather thinking that I'm living every day and I'll make the best out of this. Thank you so much. And Rajiv, as we all go through ups and downs, as a caregiver आप कितनी हिम्मत रखते हैं, बट डीप डाउन जैसे आपने बताया कि caregiver की जर्नी भी उतनी ही स्ट्रगलिंग होती है, उतना ही फियर अंदर होता है, और एक साइलेंट जर्नी होती है उनकी। तो आपकी भी ऐसे काफी टाइम हुआ होगा जहाँ पे आपने सोचा कि
शायद अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर इमोशनल टर्मोइल, या फिर कभी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी, फियर, आपने किसके साथ शेयर किया? आपकी वो हु वर योर सपोर्ट सिस्टम एज अ केयर गिवर? क्योंकि हम हमेशा हीरो बनते हैं एज अ केयर गिवर कि नहीं मुझे सब कुछ करना है, और कई बार हम अपनी हेल्थ को, अपनी इमोशनल वेलनेस, अपने पीस को ध्यान नहीं देते हैं। सो हाउ डिड यू बैलेंस दोस टाइम्स? वेरी करेक्टली सेड एक्चुअली। क्या वो एक दौर था जिसमें उतना आप भी गुजरते हैं, क्या कहूँ, उन चैलेंजेस से आप भी उतना ही गुजरते हैं जितना कि एक पेशेंट गुजर रहा होता है। एंड जो पेशेंट होता है वो समझता है कि नहीं क्या समझ में आएगा मेरी मेरी सिचुएशन के बारे में, नहीं क्या मालूम मेरा दर्द, ये तो सब अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करने के लिए बोल रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले जो आपसे प्यार करता है उसका भी उतनी ही बड़ी सफरिंग है। तो इट्स अ फनी सिचुएशन टू बी इन की कौन जरा सफर कर रहा है, मे बी जिसको पता है कि सामने वाला जाने वाला है उसकी सफरिंग ज्यादा बड़ी, क्योंकि उससे वो ये सोचता है कि मैं इसके बिना कैसे कैसे मैनेज करूंगा। तो आपको तो पता है कि अब आपके पास में संक्षिप्त समय है, आपके पास में लिमिटेड टाइम है आपके पास में, लेकिन सामने वाले के सामने तो पूरी जिंदगी है। ये थिंकिंग कि मैं पूरी जिंदगी अब कैसे निकालूंगा किसी के बिना, तो उसका पेन इज इक्वली बिगर, और मे बी बिगर, उससे ज्यादा तकलीफ उसकी है। आप तो 1.5 साल के बाद में आपको प्रोग्नोसिस दिया कि आप चले जाएंगे। तो आई थिंक इट्स पेशेंट ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी बीमारी ने दूसरे वाले को भी उतना ही तकलीफ दी है। तो इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल सिनर्जी बिटवीन पेशेंट एंड केयर गिवर। मोमेंट्स रहते हैं, मुझे मालूम है, मैं कई बहुत सारे मोमेंट्स हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत मोमेंट्स रहे होंगे व्हेन यू गो बैक, तो फिर वो मोमेंट याद नहीं करना चाहते आप, क्योंकि वो थोड़े से इमोशनल मोमेंट्स थे। मेरा सपोर्ट सिस्टम आई वुड से कि मेरी वाइफ बहुत समझती है, इवन दो मुझे, मैं कभी कुछ कहता नहीं था, बट शी वुड नो दैट, she knew that okay fine, I'm just not expressing it but I'm crying from within. मुझे एक मोमेंट याद है जब मैं एयरपोर्ट पे गोवा से फाइनली, जब मुझे लगा कि मम्मी इज काइंड ऑफ गिविंग अप, वो अब गिव अप कर रही हैं, एंड उनको अब मुझे मेरे बड़े भाई जिनकी पोस्टिंग आर्मी में थे, वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो मुझे वो मेरी जुरिस्डिक्शन से जा रही थी और मेरे बड़े भाई के पास जा रही थी, और मुझे मालूम था कि अब ये सिर्फ अब हॉस्पिटल्स में ही एडमिटेड रहेंगी। तो वी डिसाइडेड कि अगर एडमिट ही करना है देन वील डू इट इन द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स व्हिच वी थिंक इज द बेस्ट इन दिल्ली। तो उनको वहां जब जा रही थी एयरपोर्ट में, मुझे याद है वो जब चेक इन कर रही थी सिक्योरिटी में, जब जा रही थी, मैं अंदर तक गया था मैं परमिशन लेके, and जब वो बोर्ड करने जा रही थी, वो बोर्डिंग गेट से मैं सिर्फ देख रहा था उनको, एंड आई कुड जस्ट सी माय फिजिकली फिट मदर। एक इमेज आपकी वो थी, जो लोग मुझे बोलते थे कि राजीव, अगर जो लोग सोचते थे कि मैं अच्छा दिखता हूँ, वो सब बोलते थे कि मुझे कि राजीव तेरी लुक्स तेरी मम्मी से मिली है। तो दैट ब्यूटीफुल वुमन एक तरफ वो थी, और एक तरफ ये बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही फ्रेल वुमन सामने से जा रही थी। और मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और मुझे मालूम था कि लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, बट आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से मम्मी को बोल रहा हूँ बाय मम, बाय। और वो विजुअल मुझे कभी नहीं भूलता कि वो जैसी मेरी आंखों से ओझल हुई, जब वो एयर ब्रिज पे गई, निकली सामने से, एंड आई जस्ट न्यू दैट दिस इज टाटा, बाय बाय, हो गया। तो वो मोमेंट सबके होते हैं, आप गुजरते हैं उन मोमेंट से, यू काइंड ऑफ वो। एंड देन मैं वापस आ रहा था, ऑफ कोर्स व्हेन आई केम बैक, मंजरी शी अंडरस्टैंड, एंड एटलीस्ट व्हेन यू नो, वो उसने भी मुझे कभी से नहीं बोला कि राजीव, आई अंडरस्टैंड राजीव, इट्स ओके। द ओनली थिंग इज जब सामने वाला आपको समझता है, एंड लेट्स यू बी, एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट इज। बट और मैंने भी इसे छुपाने की कोशिश नहीं की ज्यादा, बट मैं भी ये मोमेंट्स अगेन आपके और माँ के बीच में होते हैं, आप एक्सप्रेस जरा नहीं करते हैं, बट आई न्यू दैट देयर इज सपोर्ट सिस्टम। माय इन लॉज बहुत बहुत सॉलिड मेरा सपोर्ट सिस्टम है इन लॉज में। सो आई थिंक दे आल्सो काइंड ऑफ अंडरस्टूड ऑल ऑफ दोस। सो यस, आपको भी उतना जरूरी है, बिकॉज मैं भी बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करता था। मुझे पता था कि मुझे काम भी करना है, मम्मी का हॉस्पिटल भी लेके जाना है, मम्मी के सामने एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट भी रखना है। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत, बाय द वे केयर गिवर्स को मैं बता दूं, चैलेंजेस इजी नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि अब आप उन चीजों से कैसे गुजरे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मम्मी अपने गाउन में ही शी वुड उनको उनकी पॉटी निकल जाती थी, लेट्स से, एंड आई नो दैट शी इज कॉन्शियस ऑफ इट, बट यू हैव टू वॉश इट एंड यू जस्ट हैव टू मेक इट साउंड एज इफ, आपने भी तो मेरी की थी कभी साहब, मैं आपकी पॉटी साफ करूंगा। देयर इज अ मोमेंट व्हेन यू रियली हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड नाइस, एंड ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अगर अगर सामने वाला ने हिम्मत दिखा के सरवाइव कर गया, तो आप जिंदगी पर हीरो हैं, आप किताबें लिखेंगे, आप पूरे समाज में भी हीरो हैं, आप अपनी आंखों में हीरो हैं, यू विल हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और अगर नहीं भी किया तो भी वो ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि आपने आपके बस में जितना भी था आपने किया, और आपका जमीर जानता है कि आपने किया, नॉट फॉर द वर्ल्ड बट यू विल नो दैट यू डिड योर बेस्ट।
So yeah, caregivers also have to pay equal importance to their mental health. So that is very important. वेरी ट्रू राजीव एंड आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि और हम लोग उसे इमेजिन कर पा रहे कैसे कैसे आपने उन सिचुएशन से नेविगेट किया और अपनी मम्मी का ध्यान रखा आपने मतलब बहुत बहुत केयर गिवर्स उस फेज में उतना अच्छे से शायद नहीं कर पाते हैं इंक्लूडिंग मी मैं भी बहुत यंग थी उस वक्त सिर्फ 25 ईयर्स की थी और मुझे भी नहीं पता था कि सिचुएशन से कैसे नेविगेट करना नितेश को कोलोस्टोमी बैग था तो उनको भी कई बार होता था कि वो बैग खुल जाता था या बहुत सारी सो केयर गिवर्स को उतना ही नॉर्मल रहना पड़ता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कुछ ऑड है या फिर कुछ है जो अनकंफर्टेबल है उनको पेशेंट को पूरा कंफर्टेबल बनाना होता है और वो खुशी खुशी करते हैं जैसे कि आपने बताया कि आप अपने पेशेंट अपने लव्ड वन की आंखों में हीरो हैं और वो जो खुशी होती है उनकी सेवा करने में उनको उनका ध्यान रखने में वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है सो आपने अपनी मम्मी के लिए जितना आप फिर से एक छोटा बच्चा बन गए उनके लिए या फिर वो आपके लिए छोटी बच्ची बन गई सो राजीव कभी भी आपने अपनी मम्मी के गोदी में सर रखे कभी आपने आंसू आए आपके या फिर कभी आपने अपना दिल खोल के आप रोए कि मुझे भी उतना ही डर लग रहा है मैं आपको खोना नहीं चाहता और उस कभी वो आपने मोमेंट्स एक्सप्रेस किए अपनी मम्मी को ना, कभी नहीं। आई थिंक अगर वो मोमेंट्स रहे होंगे तो वो मोमेंट्स मेरे अपने पर्सनल रहे होंगे शायद। आंख बंद करने के बाद जब लाइट्स बंद कर देते हो उसके बाद में मोमेंट्स रहे होंगे मम्मी के सामने। नहीं, मम्मी के सामने उनको एक बार ऐसा हुआ था कि उनको पता था कि मेरी आवाज से समझ में आ गया था उनको कि दैट की क्योंकि मैं उनको बहुत कन्विंस कर रहा था, बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि मम्मी समझो समझो समझो। और वो समझाते समझाते मुझे उनको ये कहना ही चाह रहा था कि मम्मी जितना आप अभी आप मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी अहमियत क्या है। मतलब आप ये करोगे तो आप मुझ पे एहसान करोगे, आप अपने आप पर एहसान करोगे। जस्ट टाइम व्हेन यू वांट टू से इट बट यू डोंट एंड अप सेइंग इट। सो उस टाइम पे तो एक ही बात था जब शी कुड जस्ट सेंस इट फ्रॉम माय वॉइस, जो उन्होंने लिखा भी था अपने उसके अंदर। हम तीन भाई हैं, शी न्यू इट दैट मैं अपनी मम्मी का ऑल्सो लेट मी से आई वाज डॉटर ऑफ माय मॉम। तीन जब बेटे होते हैं आपके तो उसमें से एक आपकी डॉटर होती है जिसके साथ में आपका एक अलग कनेक्शन होता है, जिसके सामने आप बोलते हैं कि राजीव मेरी साड़ी बांध दे, चल ऐसे ऐसे मैं सिखाती हूँ तेरे को कैसे डालना है, कैसे प्लीट बनानी है, इसको डाल। सो आई वाज डॉटर जो कभी चाय बचपन में चाय बना के मम्मी को पिलाता था, ऑल ऑफ दैट स्टफ। एनीवे मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत सभी बच्चे बहुत मदर और सन का रिलेशनशिप ऐसी होती है। और ये तो फ्रॉम times immemorial, sons have been the cynosure of mothers' eyes and they have taken care of their mothers. मैं कोई निराला नहीं हूँ, हम सब करते हैं ख्याल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, I mean just to this is one part of it, of course, as we're talking about caregiving and dealing with the issue of cancer. Just quickly, मतलब between you and me also, हम लोग जो लोगों को ये भी कहते हैं Dimple, that first try and avoid this situation to come. मतलब अगर आप किसी से इतना प्यार भी करते हैं तो मे बी अवेयर ऑफ द सिम्टम्स, बी अवेयर। मतलब सिर्फ कैंसर कैसे डील करना है और कैंसर को कैसे हराना है ये तो एक पार्ट है। पहले तो कोशिश करनी है कि हम अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो भी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट women, mothers, fathers जो एक vulnerable एज पे भी आ जाते हैं, टू जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किन किन चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। So वो जो एक we are not discussing that, but I still want to also give them advice that it is not just about reaching a stage। जब आपको किसी से प्यार करते हैं तो आपको उनकी हेल्थ पर एक विशेष ध्यान भी देना है, जो कि मुझे लगता है कि मैं चूक गया। मतलब मैं चूक गया और वो चूक ऐसे गया और उसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा, क्योंकि मम्मी ने डिस्कस मुझसे नहीं किया। मम्मी ने सिर्फ मुझे जब से बताया तो वो ये बताया मुझे कि राजीव मैंने सीटी स्कैन कराया था और ये मेरी बेली बटन जो होता है, जो नाभि है, उसकी एक फोटो उन्होंने भेजी जो कि बिल्कुल बाहर ऐसे बॉल टाइप बन गया था। एंड देन आई स्पोक टू द डॉक्टर। तो वो जो उसके बीच में हमेशा वो बोलती थी कि आज मेरा बैक एक है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, मेरी एपिटाइट चली गई है, मुझे भूख नहीं लग रही है, थिंग्स लाइक दैट। और मैं जब बॉम्बे में था, वो जयपुर में थी। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज आल्सो दिस कि जस्ट डू नॉट रीच अ स्टेज। अगर उससे पहले आप अगर प्यार करते हैं तो रीड द सिम्टम्स। कभी आपको लगे कि कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा अगर लंबा खींच रही हैं, सो आई वुड थिंक गिव अटेंशन टू इट। उसको सिर्फ इसलिए कि माँ और बाप हमेशा बोलेंगे कि नहीं यार बेटा, मैं तो ना थोड़ा सा उम्र हो गई मेरी, मैं थक गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, अभी ना बैक में तो होता ही है इस उम्र में दर्द, भूख तो चली ही जाती है। जब आपको लगे कुछ चीजें जरा लंबा खींच रही हैं तो पे attention to those things also. I just wanted to bring this one because we are discussing this. I rather not be in a situation like this.
तो उसका अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज बोली आपने, दैट वाज इनफैक्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन, बट हम लोग बात करते रहे तो उस डायरेक्शन में चला गया कि साइन सिम्टम्स होते हैं। एंड आपने जैसे कि बताया कि अपने पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है एज की वजह से हो रहा है, और काफी उसे टॉलरेट करते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट अर्ली डिटेक्शन कैन ट्रूली सेव लाइव्स। हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है, सिम्टम्स देती हैं कि आज कुछ गलत हो रहा है। अगर वो लॉन्ग टाइम तक 2-3 दिन भी रहता है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। एंड इंडिया में 80% लोगों का डायग्नोसिस लेट स्टेज में होता है, और सिर्फ 20% का अर्ली स्टेज में होता है, जहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस 90+ होते हैं। सो अगर हम लोग उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें सो डेफिनेटली हम जल्दी डिटेक्ट भी कर सकते हैं स्टेज 1-2 में, और उसका क्योर भी पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच राजीव फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज ये रेशियो हमें इंडिया में डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, और ये ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करके ही हम चेंज कर सकते हैं। 40s के बाद में सबको ईयरली एनुअल स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, ब्लड टेस्ट, कैंसर रूटीन टेस्ट जो होते हैं उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है विमेन में, और विमेन स्पेशली अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। सो एज अ केयर गिवर, एज अ सन डॉटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें उन्हें बोलें कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू गो एंड सी द डॉक्टर, इट्स जस्ट अ रूटीन टेस्ट। थैंक यू सो मच राजीव। राजीव, आपने बताया कि जब आपकी व्हेन योर मॉम वाज लीविंग, एंड आप क्या लास्ट मिनट मोमेंट्स में उनके साथ में थे उस वक्त, या फिर आप दूसरे सिटी में थे? उनके लास्ट मोमेंट में मैं उनके साथ में नहीं, उस मोमेंट पे नहीं था, मैं वेंटिलेटर पे थी मम्मी। ओके। एंड वो सिचुएशन इतनी अजीब थी क्योंकि अब वो वेंटिलेटर पे थी। मुझे इतना याद है कि जब मैं गया उनके पास में, मैं बॉम्बे से, जब वो वेंटिलेटर पे गई तो मैं बॉम्बे से गया उनके पास में गया। एंड उनका हाथ, ये मोमेंट्स एक्चुअली दे आर वेरी इमोशनल मोमेंट, बट देन या उनका हाथ, शी टच मी, एंड देन उसके बाद से वो वो रिएक्ट करना उन्होंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। एंड वो दुविधा फिर थी कि उनको वेंटिलेटर से निकालें या नहीं निकालें। एंड आई रिक्वेस्टेड द डॉक्टर कि, एंड आई स्पोक टू माय फादर, इनफैक्ट पापा का पहला अधिकार था, तो आई स्पोक टू माय फादर। एंड आई, मेरे भाई भी थे, आपको नॉट मी, मेरे ब्रदर्स थे, हम सब थे। एंड डिसीजन कि उनको वेंटिलेटर से निकालें कि वो या नहीं निकालें, तो माय फादर सेड नो, टिल द डॉक्टर्स केम एंड सेड कि देयर इज नो पॉइंट, मतलब अब 2-3 दिन हो गए, वी नो दैट देयर इज नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वो फिर आई थिंक हर आदमी का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कि मम्मी ने मेरे हाथ पे हाथ रखा, उन्होंने ये कहा, यू नो, ऑल ऑफ दैट, दोस मोमेंट्स हैपन। बट या वो उस मोमेंट पे मैं जब वेंटिलेटर निकाला, तब तब मैं उनके सामने नहीं था, बिकॉज जब मैं वो, पापा ने कहा था कि कुछ दिनों तो वेंटिलेटर पे रहना है उनको, और मैं बॉम्बे आ गया था, मेरा शूट चल रहा था कोई, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि फाइनली ऐसा ऐसा है। फिर हम जयपुर गए, एंड नेक्स्ट आई सॉ माय मदर विदाउट लाइफ। सो that was uh, that was the end of the journey. But beautiful memories of at least, you know, आप सोचते हैं कि चलो वो जो 1.5 साल की जो मेमोरीज थी जिसमें आपने अच्छे मोमेंट भी बिताए, डाउन मोमेंट भी बिताए, आपने हर चीज करने की कोशिश की, आप बैठ के सुबह सुबह प्रणाम भी कर रहे हैं, भ्रामरी भी कर रहे हैं साथ में बैठ के, और किसी के साथ में। तो ये मोमेंट्स खूबसूरत है बहुत ही। क्या कहूँ मैं, मतलब अदरवाइज वो शायद इतना समय तो मैं कभी नॉर्मल लाइफ में भी जयपुर में नहीं बिता पा रहा था उनके साथ में। तो वो 1.5 साल की मेमोरी जो उन्होंने दी मेरे को, वो शायद जिंदगी भर रहेंगी। एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई फील गुड अबाउट द फैक्ट दैट, अगर मैं अपने आप से प्रश्न पूछूंगा जब मैं आंखें बंद करूंगा कि राजीव तू एक अच्छा बेटा था, मैं कहूंगा हाँ, तू ठीक ठाक बेटा था, तू बहुत ही मतलब ही नहीं था, तूने यू गेव इट बैक द लव दैट केम फ्रॉम योर मदर, यू काइंड ऑफ गेव इट बैक, तो तेरा हिसाब दुनिया से बराबर है। दैट्स व्हाट मैटर्स कि हम जब जब वो टाइम आता है लास्ट में, हम कितने लोगों की लाइफ टच कर रहे हैं, क्या हम उनके डिफिकल्ट टाइम में उनके साथ थे, और आपने अपना मोर देन जितना आप दे सकते हैं, इनफैक्ट सारे केयर गिवर्स अपने लव्ड वन के लिए हम करते हैं। हाँ, And it's not easy to share such emotional moments. Really, I'm grateful that you are able to open up to share such a personal, sensitive, emotional part of your journey. इट इज And वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्या होता है कि हम लोग मौत के, डेथ के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग कैंसर के बारे में बात नहीं करते हैं। हम सब ने दुनिया में सब लोगों ने देखा है, वी हैव ऑल सीन आवर सीनियर पीपल, हम बचपन से हम देखते आए हैं, दादी चली गई, दादा चले गए, तब हमें एहसास नहीं होता, हम बहुत छोटे होते हैं, हम लगा अरे दादी गई, मेरी दादी मर गई, हम स्कूल में ही बोलते हैं मेरी दादी मर गई कल। आपको नहीं मालूम होता वही चीज अगर मेरे उस वक्त मेरे फादर से पूछते तो उनकी माँ चली गई। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ,
हमसे हमें हमेशा इस चीज से ना बहुत ऐसा बना के रखा हुआ है कि अब सोचो कभी किसी से बात करें कि यार अगर मैं कहूँ अपने घर में कभी कि यार मालूम है अगर मैं जब मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम लोग ये पीपल विल स्टार्ट डूइंग दिस, भगवान अरे क्या बातें कर रहा है, क्यों बोल रहा है ये सब चीजें। इतना बना के रखा हुआ है दैट ऐसा लगता है कि दैट एवरीवन इज गोइंग टू बी अलाइव फॉर एवर एंड एवर। मतलब द फैक्ट इज कि हम सब जाने वाले हैं। लेट्स नॉट मेक सो मच ऑफ हवा अराउंड द फैक्ट दैट कि दैट हाउ कुड शी डाई और व्हाटएवर। वी ऑल कम विद अ लिमिटेड, वी आर ऑल लिमिटेड एडिशंस। हमारा एक टाइम आएगा जब हम सब जाएंगे। सो आई स्पीक जनरली वेरी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश भी करता हूँ ताकि सबको लगे कि हाँ लड़ना एक चीज है, हथियार ना डालना एक चीज है, और अंत आना वो भी एक चीज है। मतलब इट्स ऑल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जितना हम उसको डील करेंगे बात करेंगे आई थिंक उतना ही इजी हो जाएगा सबके लिए। Thank you, Rajiv, and for sharing your emotional moments as well. It all takes us to our own caregiver journey. कि Yeah. हाँ एक वो फेज है जो हम सब उस सिमिलर फेज से निकलते हैं, हमें सबको टफ चॉइसेस लेनी होती है, खुद को भी देखना है, उनको भी देखना है, सब बहुत सारी चीजें करनी होती है. So I'm really grateful that you are able to share this. And Rajiv, last two questions. Reflecting on your caregiver journey, what are some key takeaways that you would want to share with everybody, those who are caregiver as well as with the patients? ओके, तो वन थिंग इज दैट कि द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ जिंदगी में कोई है जो आपके बहुत करीब है, उन्हें अगर आपको लगता है कि कैंसर, स्पेसिफिकली कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ना तो उनके लिए एंड ऑफ लाइफ है और ना ही आपके लिए एंड ऑफ लाइफ। तो पहली चीज तो ये कि आप भी ये मत सोचें कि अभी उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। उनकी जिंदगी में भी होप है और आपकी जिंदगी में तो बहुत बड़ा होप है। आपको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा एज अ केयर गिवर फॉर द वर्स्ट। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट कि ओके वर्स्ट क्या होगा, ये नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगी मैक्सिमम दैट्स, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी कि वर्स्ट ये होगा कि वो नहीं रहेंगे, तो जनाब बस तो ये है कि आप भी नहीं रहेंगे इवेंचुअली। सो लेट दैट फियर नॉट कम इनटू योर हेड। आपके दिमाग में ये फियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो पेशेंट है उसके दिमाग में हर सेकंड वो ख्याल आ रहा है कि मैं नहीं रहूंगा। आपके दिमाग में वो ख्याल आना ही नहीं चाहिए। जो डर उनकी आंखों में है, वो डर आपकी आंखों में नहीं झलकना चाहिए। अक्सर केयर गिवर्स की आंखों में भी वो डर झलकता है कि अभी ये नहीं रहेंगे, मम्मी नहीं जाएंगे, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी, दैट यू विल नॉट बी अराउंड। वो खौफ उनकी आंखों में आना बहुत जायज है, आपकी आंखों में आना बिल्कुल भी जायज नहीं होना चाहिए। बिकॉज इवन दो हो भी, लेकिन वो आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो आपको जितना मेडिटेशन की जरूरत सामने वाले को है, उतनी मेडिटेशन की जरूरत आपको भी एज अ केयर गिवर। बिकॉज आपका मेंटल बैलेंस जो है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए। यू विल हैव टू बी एट पीस, यू विल हैव टू बी सो काम कि आप हर सिचुएशन को डील कर सकें। रात को अगर 12 बजे एसओएस कॉल आए, आप डील कर सकें उसको। आपको अगर 1 बजे बोले कि मम्मी की अभी हालत बिगड़ गई है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनका ऑक्सीजन कम हो गया है, व्हाटएवर, यू शुड बी एबल टू डील विद इट। ऐसा नहीं हो कि उनको डील करने के लिए आपको कोई चाहिए जो आपके साथ में भी डील करे। सो एज अ केयर गिवर इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी मेंटली साउंड, मेंटली प्रैक्टिकल, मेंटली। तो वो ये जो चीजें आप उनको करवा रहे हैं, जैसे मैं उनको मम्मी को करवा रहा था, जस्ट फॉर नॉलेज, वो उसी टाइम से मैंने भी अपनी जिंदगी में शुरू की। मैं मेडिटेशन करता हूँ अब मैं, और वो वहां से शुरू की थी। बिकॉज मम्मी को कराते कराते सिखाने के चक्कर में मैं खुद सीख भी गया। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट कि यस आई हैव टू बी वेरी काम। मैं मम्मी से स्ट्रेट बात करूंगा, और मैं स्ट्रेट ही बात करता था उनसे कि मम्मी हो सकता है कि इस स्कीमों के बाद में कुछ भी ना हो सकता है आपका सीए अकाउंट जो है वो वापस बढ़ जाए। वो बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे, फिर इसके बाद में ना अपन वो भी ट्राई करते हैं, नेचुरोपैथी भी ट्राई करते हैं, वहां से भी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी काम, स्ट्रॉन्गर देन द पेशेंट। बाय द वे, स्ट्रॉन्गर देन द पेशेंट, बिकॉज आपको वो आउटकम कभी भी बताया जा सकता है। और अगर आपको किसी को निकालना है तो उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। तब आपकी कहते हैं ना कि आप किसी को क्या स्ट्रेंथ देंगे अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं है तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो आई थिंक दैट दीज आर द थिंग जो केयर गिवर को दिमाग में रखनी चाहिए। Thank you so much, Rajiv, for sharing this. And it really, we all are able to connect it with so much. And I'm sure कि आपने जो शेयर किया है, जो यहाँ पे हमारे साथ इतने सारे केयर गिवर्स हैं, वो भी उसको डेली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर पाएंगे. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, जर्नी डजंट एंड विद रिकवरी और लॉस. जर्नी हमेशा चलती रहती है. जैसे आप भी, अपनी मम्मी शायद फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप उनसे आज भी कनेक्टेड हैं. सो आपने अपनी हीलिंग को कैसे कोप अप किया, कैसे आप अपनी, जैसे आपने बताया मेडिटेशन करते हैं, बट अपने सोच में, अपने मॉम से कनेक्शन में कैसे आप उनसे जुड़े रहते हैं? आप उस जर्नी से मूव ऑन कर पा रहे हैं या फिर उस जर्नी के साथ में आज भी है? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मैं मूव ऑन कर जाता हूँ लाइफ में।
मम्मी साथ में है, वो कभी नहीं जाएंगी, मेरे ख्यालों में है, मेरी क्या बोलते हैं, मेमोरीज में है। बट एक फैक्ट ये भी है जिंदगी का कि आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं अभी। यू कैन नॉट कि यू कैन नॉट डू इनजस्टिस विद दोज जो आपके साथ में इस समय है। कभी कभी लोग एक शेल में चले जाते हैं, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू आर सच अ बिग एग्जांपल, डिम्पल, दैट यू नो उस यंग एज में यू लॉस्ट योर हस्बैंड, और उसके बाद यू कुड हैव गॉन इनटू कंप्लीट डिप्रेशन। या फिर आप थोड़ा पॉजिटिव होकर ये सोच सकती थी कि चलो मैं कुछ लोगों की जिंदगी में अगर फर्क ला सकती हूँ तो आई विल ब्रिंग दैट डिफरेंस। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके फाइन, ये चले गए, वो तो उनका वर्ड कभी भरेगा नहीं, उनकी वो जगह जो है वो हमेशा जगह खाली रहेगी। बट इस समय साथ में और भी लोग हैं, और उनके प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी है, उनके प्रति भी एक प्यार है। अब उनको उस पर फोकस करना है आपको। सो जिंदगी में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मैं अपनी जिंदगी में आने नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं आने दूं। खूबसूरत यादें रहेंगी, और उसकी कोई दूसरी जगह, कोई मतलब कोई दूसरा उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। बट यू हैव टू मूव ऑन इज व्हाट माई मेरी मेरी बिलीफ सिस्टम है, कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं, आपको अपने लिए भी आगे बढ़ना है। आपके अपने सपने हैं, जैसे कि तुमने कहा कि जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मकसद है, उस मकसद को आपको पूरा करना है। उस जर्नी में बहुत से लोग बिछड़ेंगे आपसे, बहुत से लोग आपको छोड़कर जाएंगे, पर आपकी भी अपनी जर्नी है, उस जर्नी पे जो फोकस है आपका, उसको बरकरार रखना है। दैट्स हाउ आई डील विद माय थिंग्स। एंड कभी कभी आपको आंसू आते हैं, कभी कभी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं तो याद आती हैं, कभी कभी दूसरों की मम्मी को देखते हैं आप तो आपको मिस याद आता है, अरे मम्मी, यू नो। तो वो मोमेंट्स आते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट कि मैं उसमें कंज्यूम हो जाता हूँ। बिल्कुल, मैं उसको वहीं फिर काट देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर जो मुझ पर डिपेंडेंट है, और मेरे अपने सपने हैं, मेरा अपना एक मकसद जिंदगी में जीने का। Thank you, Rajiv. Your strength is truly inspiring, and for all of us who are listening here today, thank you for sharing your heartfelt experience and a personal journey with us today. आपकी मॉम से आपके साथ में आज हम सब भी जुड़ पाए, एंड वो जहाँ पे भी हैं, सारे पेशेंट जिनको आज हमने लूज किया है, जहाँ पे भी हम प्रे करते हैं कि हमेशा वो कंफर्ट में रहें, पीस में रहें, एंड दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस केयर गिवर्स हु आर हियर टुडे, कि हम बहुत, जैसे आपने सब केयर गिवर्स ने अपने लव्ड वंस के लिए जो किया, और पेशेंट्स में हमेशा जब कोई केयरगिवर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि I lost my loved one today, and I say that they are very proud of you from up there. So your insights as a caregiver highlight importance of love, support, and positivity in cancer journey, and how to deal with it during the diagnosis, and also if at all, if patients are not here, then हम उससे कैसे cope up कर सकते हैं, और जैसे आपने अपनी जर्नी के लिए बताया। So I really appreciate the openness and the genuinity के साथ में आपने जो शेयर किया about your caregiver role, एंड आप हम सबके लिए हीरो पहले से थे, बट आज आप एक एक कैंसर पेशेंट के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी जर्नी, वो जिस जिस जर्नी से वो निकलते हैं, उनके सबके लिए जिस तरीके से आपने एज अ केयरगिवर अपना रोल प्ले किया, इट्स रियली कमेंडेबल, एंड थैंक यू सो मच राजीव फॉर शेयरिंग दैट। आप उन सबके लिए भी और हीरो बन गए हैं। सो बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू दैट, हैंडल इट विथ सच अ पॉजिटिविटी एंड सच अ मेच्योरिटी, क्योंकि हम भले कितने बड़े हो जाएं, बट कैंसर से डील करना हमें नहीं सिखाया जाता है ऑब्वियसली। सो उसको उतनी मेच्योरिटी से, उतनी ही ऑनेस्टी से और जेन्युइन केयर से आपने अपनी मम्मी के लिए जो किया, एंड वही केयर जो अब आप मंजरी जी के लिए, या अपनी डॉटर के लिए, या अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग विद योर करेज एंड डेडिकेशन, एंड सारे मेंबर्स की तरफ से आई एम रियली ग्रेटफुल टू होस्ट दिस सेशन विद यू टुडे, and it's an emotional moment for all of us, and we just pray that all the cancer patients, they get and courage and hope and positivity to go through it, and all the caregivers to strength to take care of themselves and their family members. Thank you so much, Raji. Really appreciate it. Thanks a lot. All the best. Thank And all you. the best to all the caregivers and to the patients. Thank you. Bye. Bye, everyone. Thank you.